Hello dear student. Today we will start our part 2 of this chapter, chapter 1, environment. So there is a question, what is ecosystem? Ecosystem means it is a system formed by the interaction of all living organisms with each other and with the physical and chemical factors of the environment in which they live, all linked by transfer of energy and material. In short, I told you that what is ecosystem. सिस्टम एक सिस्टम जो कंसिस्ट करता है ऑल लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है वो डिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे पर। कैसे डिपेंडेंट होते हैं ये मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। जैसे जो लाइफ साइकिल होती है, लाइफ साइकिल मीन्स जैसे प्लांट एंड ट्रीज हैं वो एनिमल्स ईट करते हैं जो हार्बीवोरस होते हैं, फिर हार्बीवोरस को कार्निवोरस ईट करते हैं। तो इस जिस तरीके से लाइफ साइकिल चलती है और एनर्जी और मटेरियल ट्रांसफ़र होते हैं वो इकोसिस्टम को कंसिस्ट करते हैं इन इजी लैंग्वेज। बट यू हैव टू study in ecosystem in a particular definition. So we are starting at here. At an NCC camp that Ravi's class was attending, Jessie exclaimed, what a heavy downpour, it reminds me of my home in Kerala. मीन्स यहाँ पर आपको एक स्टोरी जो कंटिन्यू चल रही थी, वहाँ पर रवि की क्लासमेट है जैसी, वो एक्सक्लेम्ड होके बोलती है कि क्या हैवी डाउनपॉर है। मीन्स हाँ, व्हाट अ हैवी डाउनपॉर मीन्स वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है केरला की साइड में। हमने भी सुना होगा कि साउथ में केरला की साइड में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो उसके बारे में कि वहाँ पर इतना ज़्यादा पॉर होता है, पॉर होने की वजह से वहाँ पर जो ग्रीन फील्ड है, कोकोनट प्लांटेशन है, बिकॉज दे नीड ऑल the water, more water. So in next paragraph we can see Hira from Jaisalmer exclaimed, we get no rains, we see only kikar and sand as far as the eyes can see. मीन्स हीरा जो कि जैसलमेर से है, जैसलमेर इन राजस्थान, मीन्स राजस्थान जहाँ पर नो रेन, मीन्स राजस्थान मीन्स डेजर्ट एरिया. So he told that in desert area there is no rainfall and there is only kikar and sand. And also his friend Ravi told, but you also find camels. मीन्स वहाँ पर हमें कैमल्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ हमें स्टोरी से ये समझ में आता है कि जो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस होते हैं वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की लाइफ होती है। मीन्स प्लांट्स और एनिमल्स भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं अकॉर्डिंग द नेचर, कि वहाँ का जो नेचुरल एनवायरनमेंट है वो कैसा है। सो एनवायरनमेंट इन सारी चीज़ों से कंसिस्ट होता है और एनवायरनमेंट से अफेक्ट होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स। इसीलिए डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर, जैसे माउंटेनियस रीजन मैंने आपको ऑलरेडी 6th स्टैंडर्ड में बताया है कि माउंटेनियस रीजन दैट कंसिस्ट डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स, डेजर्ट रीजन इज कंसिस्ट डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, मीन्स वेजिटेशन एंड डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट. नाउ we are starting chapter. Next paragraph, Hira says, not just camels. If you see a desert, you will see snake, lizards and many insects too. Means there is not only camels, there are many type of insects like snake, lizards, different type of insects. Ravi wondered, why do the animal and vegetation and the way people live vary from place to place? Are they all related to each other? Means they means plants and animals, they are related to each other. That is a query for a Ravi. So he is wondered. Oh yes, very much so, the teacher replied. So his teacher is replied that yes, they are interconnected to each other. Means all the plants, animal, human beings, these all things are dependent to each other. All plants, animals and human beings depends on their immediate surroundings. Often they are also interdependent on each other. This relation between the living organism as well as the relation between the organism and their surroundings from an ecosystem. Means मैंने आपको पहले भी बताया वो ecosystem is a system that is consist all living organisms that are dependent to interdependent to each other. There could be an ecosystem of large rainfall, grassland, desert, mountain, lake, river, ocean, and even a small pond. Small pond means all the places. There are different places. They have different living organisms. They had living different type of plants. They have different type of animals. These all the consist ecosystem means हर प्लेस का इकोसिस्टम अलग अलग टाइप का होता है. इन शॉर्ट, do you think the park in which Ravi and his friend played form an ecosystem? Means
क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि रवि और उसके फ्रेंड जहाँ पर खेलते थे वो भी एक इकोसिस्टम का ही पार्ट है, मीन्स उसका जो पार्क है वो भी एक इकोसिस्टम के जैसे ही वर्क करता है। तो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ह्यूमन एनवायरनमेंट। हमने पहले पढ़ा नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में कि नेचर द्वारा क्रिएट किए हुए एनवायरनमेंट में कौन कौन सी चीज़ें हैं। नाउ वी आर स्टडिंग अबाउट ह्यूमन एनवायरनमेंट। व्हाट इज ह्यूमन एनवायरनमेंट? ह्यूमन बींग्स इंटरेक्टेड विद द एनवायरनमेंट एंड modified it according to their need. As we already studied about that human being is changes day by day in environment due to their need or due to their requirement. Early humans adapted themselves to natural surrounding. अर्ली ह्यूमंस जो रहते थे पहले, वो क्या करते थे, नेचर के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट करते थे, मीन्स अपने अंदर चेंजेस करते थे। दे लेड अ सिंपल लाइफ एंड फुलफिल्ड देयर रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द नेचर अराउंड देम। मीन्स early humans are fulfilled their requirement according to the nature, not the changes in the environment. means early humans नेचर के अंदर चेंज करके लाइफ सर्वाइव नहीं करते थे, वो अपनी लाइफ के सर्वाइवल के लिए जैसे नेचर है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करते थे। With time, needs grew and become more varied. Humans learn new ways to use and change environment. They learn to grow crops, domesticated animals and lead a settled life. मीन्स जैसे जैसे चेंजेस हुए तो ह्यूमन बींग्स ने बहुत सारे इनोवेशंस किए, बहुत सारी चीज़ें सीखी, जिसकी वजह से उसने नेचर में चेंजेस किए अपनी लाइफ को ईजी करने के लिए। जैसे कि हम देख सकते हैं कि पहले जो अर्ली ह्यूमंस थे वो क्या करते थे, वो फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो भी नेचुरली ग्रो होते थे उन पर डिपेंडेंट थे। बट नाउ डेज ह्यूमन बींग्स एग्रीकल्चर करके अपने अकॉर्डिंग क्रॉप्स ग्रो करते हैं, अपने अकॉर्डिंग एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते हैं, मीन्स उनको अपने पास रखते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। द व्हील्स वर इन्वेंटेड, many things are invented by the human beings for their survival life or easy to change in their life to make easy. So surplus food was produced, barter system emerged, trade started and commerce development. means यहाँ पर आपको बताया है कि पीपल ने अपनी नीड के अकॉर्डिंग चेंजेस किए, परचेज करना स्टार्ट किया, बाई करना स्टार्ट किया, सेल करना स्टार्ट किया, फॉर प्रोडक्शन स्टार्ट किया। मीन्स बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे एनवायरनमेंट चेंज हुआ। बिकॉज कि अगर बिजनेस करना है, कोई भी सेल करना है, उसको परचेज करना है, तो वो ज़्यादा मात्रा में उस क्रॉप को ग्रो करेगा, जिसकी वजह से सॉइल का ज़्यादा यूज़ होगा। तो यहाँ पर आपको वही बताया है कि ह्यूमन ने कैसे नेचर को चेंज किया अपनी नीड के अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ईजी करने के लिए अपनी लाइफ को उसने एनवायरनमेंट को चेंज किया। यू कैन इमेजिन कि ट्रांसपोर्टेशन है, जो ट्रांसपोर्टेशन है, पहले लोग कैसे ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करते थे, दे यूज़ एनिमल। आफ्टर दैट व्हील का इन्वेंशन हुआ, व्हील के इन्वेंशन के बाद उन्होंने कार्ट बनाए, मीन्स बुल कार्ट, हॉर्स कार्ट, ये सारी चीज़ें। लेकिन बट जो चेंजेस हुए ट्रांसपोर्टेशन में आज के, जो हम देख सकते हैं बस, ट्रेन एंड एरोप्लेन, दीज आर वेरी फास्ट कम्युनिकेशन फॉर ट्रांसपोर्टेशन। So information revolution made communication easier and speedy across the world. जैसे कि हम कम्युनिकेशन में भी देख सकते हैं, पहले लोग कम्युनिकेट करने के लिए बहुत टाइम पहले लोग लेटर और ये सारी चीज़ों का यूज़ करते थे। फिर धीरे धीरे इन्वेंशन किया तो उन्होंने फ़ोन का इन्वेंशन किया, जो कि लैंडलाइन फ़ोन हुआ करते थे। फिर और ज़्यादा इन्वेंशन किया और फिर अभी हम मोबाइल फ़ोन को देख सकते हैं और आईफोन को देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ह्यूमन बींग्स ने अपनी लाइफ को ईजी करने के लिए इन्वेंट किया, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट इफेक्ट हो रही है। हैव यू एवर थॉट वाई यू लव ईटिंग अ जूस वाटरमेलन इन समर एंड हॉट रोस्टेड पीनट इन विंटर? मीन्स अकॉर्डिंग टू देयर लाइफ चेंजिंग, टू मेक देयर लाइफ ईजी, ह्यूमन बींग्स जैसे कि समर में वो कोल्ड चीज़ों को यूज़ करना है और विंटर में हॉट चीज़ों को यूज़ करना है। तो हमारी लाइफ को ईजी करने के लिए उन्होंने, ह्यूमन बींग्स ने क्या किया है, अपनी लाइफ को ईजी करने के लिए ये सारी चीज़ें इन्वेंट की। जो चीज़ें नेसेसरी थी वो ठीक है, लेकिन जो चीज़ें नेसेसरी नहीं थी ह्यूमन बींग्स ने उनको भी इन्वेंट किया और उनका मिस यूज़ किया, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट को कहीं ना कहीं हार्म हो रहा है। तो यहाँ पर वही दिया हुआ है लास्ट लाइन में, ह्यूमन मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज़ देयर एनवायरनमेंट इन अ हारमोनियस वे। मीन्स एनवायरनमेंट को हार्म करके अपनी लाइफ को लिव कर रहा है, एनवायरनमेंट का मिसयूज करके, एनवायरनमेंट को हार्म करके। नूरी, अ गर्ल फ्रॉम मिजोरम फ्रॉम रवीज क्लास, ऑफन टॉक्स about the lush green surrounding of her place. Seeing Ravi upset at having lost his playground, Nuri invited him to visit her home. यहाँ पर आपको लास्ट पैराग्राफ में एक
हॉलीडे का दिया हुआ है कि नूरी है, एक गर्ल है जो मिजोरम से है, रवि की क्लास